Students, I hope you all are fine and you all are at your homes safely. Alright, so today we'll begin with the further chapter. In the last class, we already discussed about the second part of the second chapter, that is Mukesh, how he belonged to a family which was a part of a tradition, bangle making tradition, and that tradition was getting passed on to generations after generations. And Mukesh was one of the generations which had to participate in that bangle making process. However, it was not his dream. Why? Because his dream was to become a motor mechanic. So he wanted to be his own master, but unfortunately he had to follow his family tradition and he was unable to follow his own dreams and unable to become his own master. Alright. We also understood how this process, which is so inhuman, ये सारे बच्चे को बचपन से काम करवाते हैं, and in that process what happens, till the time they become adults, they often lose their eyesight, अपनी आँख की रोशनी को खो देते हैं. Alright, till here we understood, and in the last class I also told that I'll start the chapter and I'll move further with the chapter and I'll talk about another character which comes in, who is Savita. Okay, so pay attention, turn to page number 18. For all those who don't have the text is here. So, okay, just let me read the paragraph and then I'll explain line by line. Alright. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldiering pieces of as her hands move mechanically like the tongs of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes, please underline that, it symbolizes what the bangles represent. Okay, just keep on underlining, I'll explain. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will, okay, till here. So what the bangle symbolizes, just underline that one line. Alright, let me just read and then I'll explain. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. Alright, so see, what is author trying to tell us here? There is another character and her name is Savita. So she is a child here. She's not exactly a child, but then a young girl who is wearing a pink dress and she's sitting alongside an elderly woman. वो अपनी दादी बोल सकते हो या आंटी बोल सकते हो. Similarly, एक elderly woman के बगल में she's sitting and soldering pieces of glass. Soldering is again a process where you melt the metal and you then you see mechanics working when they melt the metal through the spark comes out and they then again join the metals. That is soldering. So she's soldering pieces of glasses as her hands move mechanically like the tongs of a machine. So what does this line state? Please underline this line too, that she is a young girl. She is just like you, just like in fact younger to you. She is that girl and her hand is moving mechanically, like you go to a shop where you see a food shop where you see the people making dosa or people making any kind of samosa or anything, and the hand just move mechanically. That is just like a machine. It moves mechanically like a machine. Okay, it moves like a machine, like a tongs of machine. Again, the parts of machine. Tongs matlab yahan par parts of machine. I wonder if she knows the sanctity of those bangles which she helps make. So author here is just saying कि बहुत मजे में वो बना रही है, मशीन की तरह उसका हाथ हो चुका है और वो फटाफट उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गई है जहां पर वो अपनी दादी और नानी और आंट के साथ मिलके शी इज मेकिंग दोज बैंगल्स. बट क्या उसको अभी तक उस बैंगल्स के सैंक्टिटी के बारे में पता चला है? उस सैंक्टिटी, अंडरलाइन दैट एंड राइट, प्योरिटी, underline that and write preciousness or preciousness is not exactly a word. You can say sanctity is generally some purity तुम बोल सकते हो, ठीक है, sanctity, purity. उसको ऑथर इज सेइंग क्या वो जो इतने दिलचस्पी से इतने मशीन की तरह शी इज मेकिंग दोज बैंगल्स, डज शी इवन नो कि वो बैंगल्स का अहमियत क्या है, वो बैंगल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वो बैंगल्स क्या चीज एक्चुअली में सिंबलाइज करता है.
Okay, it symbolizes. Now author is telling the readers what does it symbolize. Okay, so just I have already made you underline it. All right. Okay, so what does it symbolize? It symbolizes an Indian woman's suhag. Suhag means again the one whom she is married to, her husband. Obviously, suhag is a husband. Auspiciousness, auspiciousness again sanctity का जो हम मतलब बताएं प्योरिटी. Auspiciousness is also प्योरिटी ही बोल सकते हो. Auspiciousness जो समथिंग विच इज वेरी प्योर, बहुत पाक है, बहुत कीमती है. ओके, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज. जनरली तुम कार्ड शादी के कार्ड में देखे होगे. सो ऑस्पिशियस बहुत पाक, बहुत प्योर सिचुएशन है जहां पर दो लोग मिल रहे हैं. ओके, auspiciousness in marriage. Again, now you don't see often other women wearing bangles. In our country we see women who are often wearing bangles. Now those bangles often symbolize the existence of her husband, okay, whom she is married to, and it also symbolizes in Indian culture it symbolizes जो शादी का जो प्योरिटी है, जो शादी का इम्पोर्टेंस है, उस चीज को भी सिंबलाइज करता है बैंगल्स. बट डू यू इवन थिंक ये छोटी बच्ची सविता इस चीज को जरा सा भी याद रखी होगी? ये जरा सा भी इसको पता होगा? शी इज जस्ट मेकिंग बैंगल्स बिकॉज उसकी दादी और नानी और जो भी वहां बैठी एल्डरली वुमन वो उसको बोली होंगी. बट शी इज नॉट इवन क्लोज टू द फैक्ट दैट what knowing the fact that what these bangles actually symbolize. all right, so please remember students, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में अक्सर आता है. who is Savita? Just describe what is she doing with the bangles, or who is Savita? What is her outlook towards making bangles, or something like that. All right. So please remember, Savita is a young girl who is sitting beside an elderly woman, and she is mechanically making bangles without realizing the importance or without realizing what these bangles symbolize for. ठीक है, समझ में आ गया? All right. Now, then the author says, it will dawn on her suddenly. Dawn on her, D-A-W-N, dawn on her suddenly. तुम सेंटेंस पढ़ो और तुम अपने आप हमको मीनिंग बताओगे यहाँ पर. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil. उसको क्या एक दिन सडनली क्या होगा? एक दिन सडनली पता चलेगा. नाउ पता चलेगा, लेकिन यहां पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? डॉन ऑन हर सडनली. डॉन, D-A-W-N. Now those students who attended my class and who attended the first chapter of first year, the Summer of the Beautiful White House, उसमें वहां पर एक सेंटेंस में ये वर्ड का उपयोग हुआ था, and I explained the meaning of this word. So those who already attended the class, they might know this. For others, just let me explain. D-A-W-N मतलब होता है भोर का समय, और D-U-S-K का मतलब होता है डस्क का मतलब शाम का समय. तो जब भोर होता है तो क्या होता है? रोशनी उभरते हुए आता है और अंधेरे पे छा जाता है ना? अंधेरा जो रहता है उसको उस पे रोशनी आता है. सो रोशनी निकल के आ रहा है और अंधेरे पे छा रहा है, एज इन अंधेरे को खत्म कर रहा है और रोशनी प्रिवेल कर रहा है वहां पर. तो जब कोई चीज डॉन करना मतलब रोशनी अंधेरे से निकल के आ रहा है और वो पूरे अंधेरे को खत्म कर दे रहा है, मतलब रोशनी आ रहा है. सो यहाँ पर इट विल डॉन ऑन हर, अचानक से एक दिन जो अभी वो अंधकार में है, जहां उसको 1% आइडिया नहीं है व्हाट दीज बैंगल्स एक्चुअली मीन, अचानक से एक दिन वो सारा अंधकार हट जाएगा और रोशनी आएगा. और क्या होगा वो रोशनी? ये बात दैट व्हाट दीज बैंगल्स सिंबलाइज. और कब होगा ये? व्हेन विल दिस हैपन? व्हेन हर हैंड्स आर डाइड रेड विथ हीना. उसके सर पे दुपट्टा होगा, घूंघट होगा, विच मीन्स उसका शादी हो रहा होगा. देन शी रियलाइज, जब उसके हाथ में चूड़ी डाला जाएगा, बैंगल्स डाला जाएगा, दैट डे शी रियलाइज व्हाट दीज बैंगल्स एक्चुअली सिंबलाइज फॉर. सो यू अंडरस्टूड व्हाट डज डॉन मीन? ऑल राइट. So again the same sentence, I'm just reading it. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil. Veil again I said, जब हम मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि वो वेल से अपना सर ढकती है व्हेन मुकेश के पापा एंटर करते. वेल घूंघट. ऑल राइट. सो हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना. हीना you all know मेहंदी. And red bangles rolled on to her wrists.
she will then become a bride. Again I said, वो जिस दिन शादी होगा वो bride बनेगी, दुल्हन बनेगी. That day she'll actually realize what these bangles symbolize, जो वो बचपन से लेके अभी तक वो bangles बना रही है. Like the old woman sitting beside her who became one many years ago. तो just like वो elderly woman, वो बूढ़ी औरत जो उसके बगल में बैठी हुई है, उस औरत के जैसा ये भी एक दिन बनेगी. और जैसा ये जो elderly woman इसके बगल में बैठी थी, she also became a bride one day. और bride बनने से पहले भी वो bangles बना रही थी, bride बनने के बाद भी आज भी वो bangles बना रही है. Because the entire family का जो ट्रेडिशन है वही है. ये लोग उसी काइंड ऑफ कास्ट को बिलोंग करते हैं, बैंगल मेकिंग कास्ट, जहां पूरा पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ बैंगल बनाता है. ऑलराइट, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट. किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पर? शी कौन है? छोटी बच्ची सविता? नो, सविता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लिखा है, देखो क्या लिखा है, शी हैज बैंगल्स, स्टिल बैंगल्स ऑन हर रिस्ट. तो सविता के हाथ में चूड़ी है? नहीं. किसके हाथ में? एल्डरली वुमन. तो शी के बगल में जो अंडरलाइन एंड राइट द एल्डरली वुमन, जो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मेंशन्ड है. ऑलराइट, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज. प्लीज अंडरलाइन दिस. अगेन एज आई सेड, इसके प्रीवियस पैराग्राफ में और लास्ट क्लास जो हम डिस्कस किए थे कि ये लोग उस ट्रेडिशन में बहुत जोर से इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा दिलचस्पी से इन्वॉल्व होता है, बहुत लोग मजबूरी में, बहुत लोग मजे में. बट वॉट हैपन्स इन दैट प्रोसेस, जब तक वो लोग अडल्ट बनते हैं, दे लूज देयर आई साइट, दे कैनॉट सी प्रॉपरली, एंड विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि नहीं देख पाना अपने में ही बहुत बड़ा सजा है. एंड दिस लेडी, दिस एल्डरली वुमन, शी हैज नो लाइट इन हर आईज एज इट इज मेंशन्ड. ओके, जस्ट लुक हियर, शी हैज बैंगल्स इन हर रिस्ट. सो अगेन यहाँ पर ऑथर ताना मार रही है काइंड ऑफ, कि उसके हाथ में चूड़ी तो है लेकिन आंख में रोशनी नहीं है. ऑलराइट, एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. Now just understand the expressions which are used. ठीक है, again and again I'm saying English literature is made from English language, और language समझना बहुत important है. यहाँ पर क्या बोल रही है? एक वक्त का भी खाना नहीं खाया है ठीक से. एंड शी सेज इन अ वॉइस, ऑब्वियसली जब तुम किसी को बताओगे कि हम एक वक्त का खाना नहीं खाए, तुम क्या उछलते हुए बताओगे? नहीं, तुम उस तकलीफ के साथ बताओगे. तुम्हारे आवाज में सारा खुशी लगेगा, कोई खुशी एक सक कर लिया है, एक मशीन है जो सारा खुशी को खींच लिया है. तुम्हारे आवाज में ना कोई खुशी होगी ना कोई मजा होगा, एंड इट विल बी वेरी बहुत बोल सकते हो बहुत मायूसी से भरा होगा. सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा है? शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन कर देना. जब मशीन, ऑल दोज हु हैव मशीन एट देयर होम्स, वॉशिंग मशीन, देयर इज एन ऑप्शन ड्रेन. जब तुम ड्रेन करते हो तो जितना पानी मशीन में होता है दैट जस्ट फ्लोज ऑफ. ओके, दिस फ्लोज आउट ऑफ द मशीन. तो सारा पानी बाहर निकल गया, तो वो ड्रेन हो गया. यहां पर वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहां पर जितना भी अनवांटेड पानी है, वो यूज्ड पानी है, वो सारा पानी निकल जाता है. तो ड्रेन ऑफ जॉय, जॉय खत्म हो जाना, जॉय निकल जाना. उसके आवाज में कोई भी जॉय नहीं था. ऑलराइट, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये लोग बैंगल्स बना रहे हैं, ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर एक वक्त का खाना भी नहीं खाया है ठीक से ये लोग. अब यहां पर कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट और कॉन्ट्रास्टिंग काइंड ऑफ बोल सकते हो थीम आएगा, जो स्टोलन चाइल्डहुड के थीम पे ही बेस्ड है. और वो क्या होगा? अंडरस्टैंड. साहिब के टाइम, साहिब के चैप्टर में फूड वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी. प्लीज जस्ट रिमेंबर, उन लोग के लिए जितनी भी वहां औरत थी वो क्या बोलती थी कि भले हम लोग को घर नहीं मिला हो, भले हम लोग को आइडेंटिटी नहीं मिला हो, हम लोग के पास कोई भी यूनिक आईडी कार्ड नहीं है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, पर कम से कम रात को भरपेट खा के सो रहे हैं, और यही अपने में हम लोग के लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री है. यहां पर देखो क्या बात होता है. अब इस चीज को जहन में रखो एंड देन आई प्रोसीड. अब देखो क्या बोलना चाह रही है. That's what she has reaped. Her husband, the old man with a flowing beard, दाढ़ी,
says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Just imagine, जो मुकेश के पापा थे बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में, वो भी इसी तरह कुछ काम किए हैं. ना अपने बच्चे को, मुकेश और उसके भाई को, ना स्कूल भेजे, ना घर सही से बनाए, लेकिन एक चीज जरूर सिखाए, वो है बैंगल्स बनाना. यहां पर ये जो एल्डरली वुमन का हस्बैंड है, ये क्या बोल रहा है कि हम बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, बस हम एक घर बना दिए जहां पर सब कोई अच्छे से रह सकता है. दे हैव अ हाउस, दे हैव एन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर इन सारे लोग का? ये लोग बैंगल मेकर्स हैं. बैंगल मेकर कास्ट को बिलोंग करते हैं, बैंगल मेकर्स ट्राइब को बिलोंग करते हैं. ठीक है, बट क्या फूड है इन लोग के पास? नहीं. तो इन लोग के नजर में आइडेंटिटी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन फूड. फूड पीछे चला जाता है, खाएं नहीं खाएं कोई मतलब नहीं है, हमको मेरा आइडेंटिटी चाहिए, हम कौन है, हमको सबको पता होना चाहिए ये फलाना नाम है और हम लोग बैंगल बनाते हैं बस. लेकिन खाना है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, साहेब का जो परिवार था और रैक पिकर्स थे, उन लोग के लिए हम आइडेंटिटी मैटर नहीं करता था. आइडेंटिटी भले जीरो हो लेकिन खाना होना चाहिए. सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कॉन्ट्रास्टिंग क्या है. अनीस जंग एक्चुअली क्या कर रही है? शी हैज प्रोड्यूस 2 स्टोरीज. एक स्टोरी में वो फूड इंपॉर्टेंट रखी है, एक स्टोरी में वो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट रखी है, लेकिन दोनों में एक कॉमन थीम है, वो है स्टोलन चाइल्डहुड. ओके, now you understanding the concept? All right. So see, hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their entire lifetime. He has a roof over his head. So again, author is being sarcastic and she's saying, उसको सुनने के बाद, वो एल्डरली वुमेन के हस्बैंड को सुनने के बाद, एक चीज तो इंसान सोचता है कि कुछ हो ना हो, ये इंसान कितना बड़ा चीज अचीव कर लिया है जो आज तक कितने लोग नहीं कर पाए. भाई वो छत बना लिया है अपने ऊपर. सो शी इज बीइंग sarcastic. sarcastic मतलब ताना मार रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सर के ऊपर छत होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेट में खाना है. बट दीज पीपल जस्ट फोकस ऑन देयर आइडेंटिटी एंड दे पुट फूड ऑन द बैक सीट. वो लोग फूड को सेकेंडरी में रखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी होना चाहिए. और इन लोग का आइडेंटिटी किस चीज से? बैंगल मेकिंग से, जो ये लोग का जनरेशन आफ्टर जनरेशन आर फॉलोइंग द ट्रेडिशन. ऑलराइट, इन द नेक्स्ट क्लास I'll try to finish the chapter. I know this particular chapter has gone in around 7 to 8 parts. All right, but again and again I'm saying I'm doing all the chapters slowly and I'm going line by line so that you all can understand. There's no hurry in anything. We have our exams. We will be having our exams next year. I have 8 chapters to do, so I'll be going slow. Please attend all the lectures. Whenever you are just lying down on the bed or you are doing something, put on earphones, just listen to what I'm saying, because जितना सुनते जाओगे उतना ज़्यादा तुमको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा. Alright? Okay, so please just go through the chapter once again and we'll meet again. Alright, thank you.